colleagues as well. Okay, I'm also thankful to all your colleagues who are sitting over here and they are present in this seminar. Your patron, Dr. Sheikh, Professor Sheikh Asrar, Principal of Lahore Institute of Education, Director Education, Dr. Ayaz, Chief Organizer as you, Dr. Nibra Munir. Thank you, ma'am. So nice of you. Dr. Asif Shahzad, Dr. Mr. Khalid, and the renowned speaker who is outside of this country and will take her session. Ms. Nibra, my presentation, I should start. So, according to my opinion, inclusive education is a mindset. It is a belonging, and it is not a program. If you say that if we want to favor someone, that is inclusive education, and inclusion is embracing the fact that everyone has value to add. If we want to someone added in our education system, either he or she has disability, speciality, or any type of segregation, he or she should be added in the education system. Because I am feeling that some voice is roaring in my microphone, so I'm very slow. It is not about fitting into the social norms of a majority. And in my opinion, inclusion is building a community that is uh, accessible to everyone, and it is adapting an environment. Yes, you can say that method of teaching condition to meet the need of all student. Now I start my presentation. As you are seeing in my presentation that there are some red area. What is that area? Learning environment that promote the full personal, academic, and professional development of all learners, irrespective of race, class, color, gender, disability, cultural preference, learning style, and language. I would like to add here that when you want to give holistic development to our student, either in personal, academic, and professional, we should give priority to inclusive education. Every student has different learning style. Either he or she may be audio learner, video learner, kinesthetic learner. If he is in age of small age, then inclusive education what is? Different and diverse student learning side by side in the same classroom. Now, what does it mean? When all children in the same classroom, in the same school, and it means learning opportunities for all who have traditionally been excluded. Here I mention the word excluded in yellow area. Not only children with disabilities, but speaker of minority language to inclusive system require change to all level of society. अब मैं यहाँ इसको बहुत इजी तौर पर इसको डिफाइन कर सकती हूँ कि आप जब मार्च में सोसाइटी में क्लासरूम में स्कूल के अंदर किसी बच्चे को उसकी रेस, उसकी कलर, उसकी डिसेबिलिटी, उसके किसी भी कल्चरल प्रेफरेंस की बुनियाद पर उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, तो आप बहुत बड़ा जुल्म करते हैं, आप बहुत बड़ी उसके साथ नाजायज नाइंसाफी करते हैं। हर बच्चे को होता है कि वो अपना बुनियादी हक है उसका कि वो तालीम हासिल करे। अच्छा, सबसे बड़ी कोई बात, हम एक क्लासरूम के अंदर अगर समझ लेंगे हेट्रोजीनियस हमारे पास 30
दिमाग भी काम नहीं करता घर पर, हो सकता है कि उसका इंटेलिजेंस आम बच्चों से बहुत ज्यादा हो। तो यहाँ पर इंक्लूजन का मकसद ये है कि आप हर बच्चे को उसका पर्सनल मेंटेन दें, उसकी आईक्यू के लिहाज से उसका मेथड को डेवलप करें और टीचर को उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। Inclusive education provide a better quality education for all children, as I have said in my previous slide. What it does mean? What you will say if a child is partially hearing impairment, what you will do? There should be must some instruction, some strategies, some method which should meet with the need of that child. अब यहाँ पर एक और रिलेशनशिप की मैं बात करती हूँ कि जो दुनिया के अंदर और क्लासरूम के अंदर इस ब्रिज को या तो गैप को बढ़ा देगा टीचर या इस गैप को मिनिमाइज कर देगा। तो सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो आती है टीचर की, कि टीचर के पास इंस्ट्रक्शन मॉडल कैसा है। यहाँ पर मैं सोशल रिलेशनशिप की और लीडरशिप की बात करूंगी। अगली स्लाइड में हमने इसको डिफाइन भी किया है कि पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है। बहुत बैडली अनफॉर्चुनेटली कि यहाँ पर आप इसको स्टैटिस्टिक्स देख रहे होंगे कि कितने बच्चे आउट ऑफ स्कूल मौजूद हैं। तकरीबन 44% होल पॉपुलेशन का जो इस एज में है, जो स्कूल जाने वाली एज है, और ये तकरीबन एस्टिमेट होता है 22.8 मिलियन चिल्ड्रन। अब इनका क्या किया जाए? इस तस्वीर के अंदर आपको दो बच्चे ऐसे नजर आ रहे हैं जो काम कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तालीम हासिल करना चाहते हैं, उनके पास लर्निंग एबिलिटीज है, लेकिन उनके पास सोशल एटमॉस्फेयर, सोशल वो तमाम तर फैसिलिटीज मौजूद नहीं है। अब इन बच्चों पर क्या किया जाए? आप यहाँ पे पाकिस्तान का स्टेटा देख रहे हैं जिसके अंदर बलूचिस्तान है, क्वाटा है, सिंध है, आज़ाद जम्मू कश्मीर है और गिलगित बलूचिस्तान, पंजाब, केपी के और इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद जैसी जगह पर भी आप देख रहे हैं कि इसमें 12% आपको नजर आता है, जिसमें 12 और 11 का मेल और फीमेल आपको यहाँ पर रेशो नजर आता है। क्या ये अलार्मिंग कंडीशन नहीं है? ऐसे बच्चे जो एग्रीकल्चर की वजह से, जो काम की वजह से, जो किसी भी अपॉर्चुनिटी ना मिलने की वजह से, किसी थ्रेट की वजह से, एम्पावरमेंट की वजह से, पॉवर्टी की वजह से स्कूलों में जाने के काबिल नहीं है, उनके लिए क्या लाया अमल अख्तियार किया जाए। अब यहाँ पर उस लैक्यूना की मैं बात करूँगी कि जो बैरियर के तौर पर इस एजुकेशन सिस्टम को मफलूज कर रहे हैं। अब वो कैसे हैं कि अगर आप नहीं है, हमारे पास यहाँ पाकिस्तान के अंदर अर्बन की भी बात कर लें या रूरल की भी बात कर लें, यहाँ पर आपको अगर कोई बच्चा अगर फिजिकल डिसेबिलिटी का शिकार है एंड ही इज ऑन व्हील चेयर, तो हमारी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनके पास ऐसे जराए नहीं है, ऐसे रिसोर्सेज नहीं है रन की सूरत में कि वो आज़ादी से फ्रीली वर्क कर सकें। तो इसका मतलब है कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम में ऐसे बच्चों को जो कि माइनर ही है लेकिन हम इनके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो ये जो डिसेबल फ्रेंडली बिल्डिंग है इनका ख्याल रखना जरूरी है और यही सबसे बड़ा बैरियर है। दूसरी बात ये कि द टीचर ट्रेनिंग फिनोमेना, हाउ द टीचर विल deal with this type of children and students or learner. So a teacher should be trained, but unfortunately we have no formulation of policy regarding this training. And the third one, which is very big barrier, this is curriculum adaptation. What curriculum should be adapted for this type of special segregated or the minor student? Hello? School system, this is also
it is also a barrier of education system. And the main thing is political will. Who are ruling here? Who wants to improve their students, learner, community, and people. This if this will is not developed in our political leader, then our education system should not be sustainable or the developed. Awareness of the right of the person with disability. We have no idea regarding this. And now the third one is poor implementation of policy initiative. ये अगर बैरियर की अगर मैं बात कर दूँ, इसका तजर्बे के साथ इस बात के ऊपर मैं आपसे कह सकता हूँ कि एजुकेशन पॉलिसीज तो हमारी बहुत मजबूत है, फॉर्मुलेशन के पास बहुत मजबूत है, इसके ऊपर काम भी होता है, इसके ऊपर पॉलिसी इनिशिएटिव लिए भी जाते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो बहुत सारी और गुड गवर्नेंस मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन की वजह से इसके ऊपर कोई काम नहीं होता है। हेलो इसके ऊपर काम नहीं होता है। जब हम ये बात करते हैं ना, पॉलिसी बन जाती है, पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एजुकेशन पॉलिसी को अनाउंस भी कर देती है, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन का लेवल आता है तो फिर आपको ये लगता है कि या तो ट्रांसफर पोस्टिंग इसके ऊपर इम्पोज हो गई है, या किसी के पर्सनल बेनिफिट्स होते हैं, या मैं इसको कहूँगी कि इंटरफेरेंस होती है। ये इम्प्लीमेंटेशन के लेवल के ऊपर जाकर फेल कम अज कम होते हैं, पार्शल इम्प्लीमेंट फुल्ली नहीं होता, लेकिन पार्शल इम्प्लीमेंटेशन की सूरत में थे, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट सही नहीं आते। अब अगर मैं बात करती हूँ कि पॉलिसी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होनी चाहिए, तो ये तो बात तय है कि इसके अंदर ऑल पर्सन, ऑल लर्नर, ऑल स्टूडेंट्स और टाइप ऑफ स्टूडेंट शुड बी एडेड, ठीक है। और एक इंस्टीट्यूशन सिर्फ एक पर्टिकुलर पीपल के लिए नहीं होना चाहिए, लर्नर के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके अंदर सब लोगों को एक जैसा कैरिकुलम, एक जैसी इंस्ट्रक्शन, एक जैसा मेथड, एक जैसा एनवायरनमेंट फिजिकल देना चाहिए, ताकि जो क्वालिटी टीचिंग है और क्वालिटी लर्निंग है, इसमें इक्विटेबिलिटी आए और इसमें एक्सेसिबिलिटी है। तो ये पॉलिसी अगर हमारे यहाँ इम्प्लीमेंटेशन के लेवल के ऊपर अगर नहीं प्रेफर की जाती है, तो जो उसका नुकसान आप देख रहे हैं, तो आपने देखा 44% बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं। यहाँ दो चीजें जो आपने देखी कि डाइवर्सिटी और इक्वलिटी के हिसाब से, तो यहाँ पर यही फिनोमेना इंक्लूसिव एजुकेशन में बहुत ज्यादा काम आप अपने बच्चों के साथ, आप अपने लोगों के साथ किस तरह से लर्निंग को बेटर बनाते हैं और इंक्लूसिव स्कूल बेनिफिट जो है तमाम चिल्ड्रन के लिए बनाते हैं। इसमें तीन चीजें बहुत काम की। नंबर 1, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इंक्रीज, जितना इंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल होगा, जो मेथोडोलॉजी होगी, जो पेडागॉजीज होंगी, वो तमाम लोगों के हिसाब से, स्टूडेंट की मोटिवेशन के हिसाब से अलग होंगी। यकीनन उस वक्त बच्चे जो हैं, सारे के सारे बच्चे उसमें वहां पर इन्वॉल्व भी होंगे और एंगेज भी होंगे, इंटरेस्ट और इंटेंशन डेवलप होगा। आर यू लिसनिंग मी? Yes, ma'am. Your voice is very clear. हेलो, हेट्रोजीनियस ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए, उसको फोकस करने के लिए, तो स्टूडेंट एंगेजमेंट बढ़ती है, इंटरेस्ट बढ़ता है, और दूसरे के आउटपुट आपको मिलता है, क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। दूसरी चीज है कि जब तक आप, यानी ये टीचर की बात हो रही है कि जब तक स्टूडेंट हो, फुल कैरिकुलम के ऊपर आप एक्सेस नहीं करेंगे, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो जब तक का लर्निंग आपको 100% नहीं मिलेगी। दूसरे, एक तो आपको एकेडमिक सपोर्ट करनी है, दूसरी आपको बिहेवियर में सपोर्ट करनी है, और ये दोनों चीजें मिलकर जो है वो पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करती हैं। जब तक कंडीसिव एनवायरनमेंट नहीं होगा, एजुकेशन सिस्टम नहीं होगा। एजुकेशन सिस्टम 4 चीजों के ऊपर, 5 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। 4
4 पिलर हैं, स्टूडेंट आउटपुट के तौर के ऊपर, टीचर प्रोसेस के तौर पर, कैरिकुलम मेथोडोलॉजी जो है वो जी वो भी प्रोसेस के तौर पर है। लेकिन जब आप आउटपुट लेते हैं तो वो एग्जामिनेशन की सूरत में होता है। उसमें मेरे लिए, आपके लिए, XYZ किसी के लिए, हर चीज हर एक के लिए नहीं होती। इंडिविजुअल डिफरेंस जो है वो दूसरों के जो होते हैं वो दूसरों के मुख्तलिफ हुआ करते हैं। तो इंक्लूसिव एजेंट जो है बिला इम्तियाज सीखने और सिखाने का मन है, और इसके अंदर जो है इंडिविजुअल डिफरेंस का ख्याल रखा जाता है, IQ लेवल का ख्याल रखा जाता है। और दूसरे ये कि जब हम बात करते हैं इस डिफरेंसेस की, तो यहाँ पर यह बात करनी भी जरूरी है कि हम बाज़ औक़ात स्पेशल एजुकेशन को और इंक्लूसिवेशन को मिला देते हैं और ये समझते हैं कि स्पेशल एजुकेशन जो डिसेबल बच्चों का एक फेनोमेना है या उनका एक पॉकेट है या थॉट ऑफ स्कूल है, हम उसके अंदर इसको ले जाते हैं। तो स्पेशल एजुकेशन को अगर हम यहाँ देखते चले ताकि हमारा जो फोकस है वो जरा वाजे हो जाए कि प्रैक्टिस ऑफ प्रोवाइडिंग individualized instruction and support to students with disabilities or learning difficulties। अब ये disabilities जो होते हैं फिजिकल भी होती हैं, मेंटल भी हो सकती हैं, और इसके अंदर बहुत सारी अक़साम है। तो उसी तरह से उनकी लर्निंग स्टाइल को मैन्युफैक्चर किया जाता है, बनाया जाता है और इन डिफिकल्टीज को रिमूव किया जाता है। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? इस डिसेबिलिटीज के साथ पीयर एजुकेशन का एक पॉकेट बनाया जाता है और अलोंग विद आप इसको स्ट्रीमलाइन करते हैं सेम क्लासरूम के अंदर। तो यहाँ पर ये दो बातें बहुत मैं समझती हूँ कि क्लियर हो जानी चाहिए कि एक क्लासरूम में अगर कोई बच्चा डिसेबिलिटीज के साथ है तो एक टीचर अपना पर्सनल स्पेशल फोकस उस बच्चे पर देकर उसको 100% लर्निंग की तरफ ला सकती है। आपके पास यूनेस्को की भी यही डेफिनेशन आती है कि वो प्रोसेस जो कि रिस्पॉन्ड करता है किसी डाइवर्सिटी नीड को, जो कि बहुत सारे मुख्तलिफ होते हैं, और उनकी पार्टिसिपेशन को इंक्रीज कराया जाता है, चाहे वो कल्चर के एतबार से, चाहे वो कम्युनिटीज के एतबार से, चाहे वो रिड्यूसिंग एक्सक्लूजन फ्रॉम एजुकेशन एंड फ्रॉम विद इन एजुकेशन। यहाँ ये वर्ड जो है ना बड़ा डिबेटेबल है। यकीनन इस मुख्तसर वक्त के अंदर हम इस पर बात नहीं कर सकेंगे, लेकिन फिर भी हमारा आज का गोल यही है कि हमारे बच्चों को, हमारे टीचर्स को आज के दौर में, इस नए एरा के दौर में, नई साइंस और टेक्नोलॉजी में, जब हर बच्चा आगे जाने के लिए अंदर से दिल से तैयार है, उसको उस हाथ पकड़ा जाए और उसको उस क्लासरूम में लाया जाए और उसको उस स्कूल में लाया जाए और उसको भी माशरे का एक बेहतर फर्द बनाया जाए। तो ये जो चैलेंजेस हैं और ये जो बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिटी है, ये हमें बहुत जल्द पता चलने लगता है, लेकिन बदकिस्मती से ये होता है कि हमने यहाँ पर किसी भी बच्चे को अगर ये देख लिया कि स्लो लर्नर है, इसकी कोई फिजिकल और थोड़ी सी भी इसके अंदर कोई कमी है, खुदा ना करे, तो हम उसे बिल्कुल आइसोलेट करके रखते हैं, और फिर हमारा टीचर, हमारा बच्चा, हमारी कम्युनिटी, हमारे खानदान, हमारे अफराद, हमारे वालिदैन, यहाँ पर मैं वालिदैन को भी कहूँगी कि वो बच्चे को भी खुद एहसास कमतरी में मुब्तला करते हैं और उनको अपॉर्चुनिटी आगे बढ़ने की नहीं देते। अब इस मुख्तसर वक्त के अंदर मैं आखिरी इस स्लाइड के ऊपर भी जाती हूँ ताकि फिर हम बातचीत का सिलसिला शुरू कर सकें। इसमें यह है कि तमाम टीचर्स को प्रिपेयर होना पड़ेगा और वो एक थीम होनी चाहिए, टू टीच ऑल स्टूडेंट, ठीक है, डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस इन स्टैंडर्ड एंड क्वालिफिकेशन, एजुकेशन system are increasingly moving away from identifying problem with learner and toward identifying barriers of learning. And last but not
least, uh, what comprehensive inclusive program for children with a special need has the following component. These 5 components are very prominent. First of all, you should find the child who has this need. Then you assess whether he or she want what type of learning style. Then program option, which option is better for his success, and how to modify the curriculum. And the last one is parental involvement. Without parental involvement, encouragement, attention, and intention, you could not get the best result. I think that inclusive education has the principles which are more important, and these are, I have written in the bracket, E plus A plus O, and that is equity, E, O, and I. As I have described, that these are very essential for better learning. So, conclusion of this inclusive education, okay, if we want to favor someone, hello, are you listening? Yes, ma'am. We are listening you. If we want to favor someone, so it is a type of belonging. It should be a mindset of us. हमें लोगों के लिए, मैनकाइंड के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, स्टूडेंट के लिए, कम्युनिटी के लिए और बेटर डेवलपमेंट ऑफ कंट्री के लिए हमें हर बच्चे को इस स्कूल सिस्टम के अंदर लाना होगा. एक्सक्लूड कर देने से जहाँ बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, वहां पर ये भी होगा कि आप अपने बच्चों की तादाद आज 44% है, कल आप इसके अंदर मजीद इंक्रीमेंट देख रहे होंगे और फिर इसके बाद मजीद इंक्रीमेंट होगी. तो इसका मतलब है दोनों तरह से आपके अंदर, एक तो आपके अंदर पॉवर्टी बढ़ती जाएगी, आपके अंदर लिटरेसी बढ़ती जाएगी, और आप एक छोटी सी बात की वजह से आप शायद अपने बच्चे को, अपनी कम्युनिटी को नुकसान पहुंचा रहे होंगे. तो फिट करने के लिए आपको सिस्टम के अंदर एक आइसोलेटेड सिस्टम बनाने की जरूरत थी, उसी स्कूल में, उसी क्लास के अंदर. बस ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन, मेथोडोलॉजी को अगर आप डेवलप करते हैं तो आप यकीनन उसके अंदर एक कहीं इस बच्चे के लिए स्पेस पैदा कर सकते हैं. मैं समझती हूँ कि चूंकि जिस वक्त हम ये प्रेजेंटेशन कर रहे थे तो मैं बहुत आई वॉज वेरी मच लाउड बिकॉज rolling was in my microphone. So if someone has some difficulty to hear me, मैं समझती हूँ कि उसके ऊपर मैं सॉरी भी करती हूँ और मैं समझती हूँ. No, ma'am. No need to say sorry. Thank you, Dr. Nimra, that you give me opportunity to be here. And I'm very thankful to all of your colleagues that who made this opportunity. And after COVID, a normal new which is being normalizing, you initiated this type of mutual gathering, virtual gathering. Thank you very much. I think my time has been done. Please, sir, and thank you all. Your next